Right. Hydrocarbons revision. Today is the last. Tomorrow means Monday onwards I will start haloalkanes. Okay, these hydrocarbons mainly alkanes, alkenes, and alkynes. Alkanes, alkenes, and alkynes. You know these alkanes, saturated hydrocarbons. These two are unsaturated, unsaturated, unsaturated hydrocarbons. It is a saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. CnH2n plus 2 is the general molecular formula. CnH2n, CnH2n minus 2. इसका सफिक्स होता है एन, इसका होता है इन, इसका आइन. ओके, एक एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH3, इथेन, इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ethene, ethene, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ethyne, ethyne. Okay, here hybridization, hybridization. This carbon is sp3 hybridization. Listen carefully. In the organic chemistry, in the organic molecules, पूरा मॉलिक्यूल का एक हाइब्रिडेशन नहीं रहता है. Each and every carbon has different or same hybridization, but we have to represent per carbon. Okay, this carbon has sp3, this carbon sp2, this one also sp2, here it is sp3, this one sp, hybridization. What was the formula? Hybridization formula I am writing here. Hybridization equal number of sigma bonds plus lone pairs. Lone pairs. ठीक है? Here number of sigma bonds 3 hydrogen plus this carbon CC bond. Total 4. 4 means sp3. Here pi bond है. So 1 sigma bond, 2 hydrogens. हाइड्रोजन कभी भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. It never form pi bond. 2 hydrogen means 2 sigma bond, 1 total 3. 3 means sp2. Hybridization will start from s orbital. sp2, sp. Right? Now here electron negativity, CsP carbon has more than CsP2. CsP2 than CsP3. Therefore acidic strength हो जाएगा, acidic strength, I will write acidic strength in the bracket Ka. पता चलेगा Ka मतलब acidic strength. So same order में होगा. Alkyne, I will write it. Alkynes are more than alkenes, than alkanes. Okay, right. Next, reactivity होगा obviously alkanes को ज्यादा होगा. Alkynes को ज्यादा होगा. Okay, I think it's not visible there. I will write it here. Next, reactivity किसका ज्यादा होगा? Alkynes को ज्यादा होगा. Alkenes less reactive, alkynes more reactive. These are very less reactive. That's why these are known as paraffins. Name also important here. Paraffins.
पैराफिन, तुम सुना होगा पैराफिन ऑयल और पैराफिन कैंडल्स, कैंडल्स का भी पैराफिन बोलते हैं, पैराफिन्स। ओके, देन पैराफिन मतलब इसका मीनिंग है लेस रिएक्टिव, इसका मीनिंग है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट alkenes are known as olefins, olefins, olefins मतलब oily nature, oil nature, oil nature। Next alkynes, alkynes acetylene, common nomenclature is acetylene, acetylene, common nomenclature is acetylene। Okay, you can note down, see hardly in one class I will cover it maximum। Okay, acetylenes। Next, if you want to take screenshot fast, then you can write। Next, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है वो वोलेटाइल कंपाउंड्स, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी, वोलेटाइल और वोलेटिलिटी, वोलेटाइल किसका ज्यादा होगा? alkanes are more volatile than alkenes than less alkynes। होता है क्या है इधर, volatility is inversely proportional to boiling point। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वोलेटिलिटी कम है, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो हियर alkanes, alkanes में ओनली वीकेस्ट वैन डेर वाल्स फोर्सेस, alkanes में थोड़ा तो डबल बॉन्ड है, कुछ पोलराइजेशन होने का कुछ तो चांसेस है। सो alkynes में और थोड़ा ज्यादा है, पोलैरिटी तो बनेगा, alkanes में कोई पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, अभी वोलेटिलिटी के एक पॉइंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दूसरा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, एक पॉइंट है, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रहे इसके ऊपर, सरफेस एरिया, क्योंकि एक देते एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सो दे विल गिव आंसर maximum boiling point has n pentane। ओके, सो सरफेस एरिया। तीसरा molecular mass, surface area, boiling point generally depends on intermolecular force, intermolecular force, intermolecular force, intermolecular force। अभी alkane and alcohol पूछा है, alcohol is the highest intermolecular force, it is a more means high influence, you can say high influence, high influence, high influence। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब उसको ज्यादा है, सीधा सीधा पोलर सपोज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो भी ज्यादा है। अभी ओनली सब आल्केन दिया सपोज, उस टाइम में ये पॉइंट नहीं है क्योंकि तो ओनली वैन डेर वाल्स फोर्सेस। उसके बाद देखना है सरफेस एरिया एंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, पेंटेन का एग्जांपल दिया, मॉलिक्यूलर मास सेम था, इन दैट केस सरफेस एरिया विल डिसाइड। ओके, अभी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वोलेटिलिटी कम होगा, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट हियर ये आल्केन्स में ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, दीज आर एग्जिबिटिंग व्हिच आइसोमरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। ये आल्केन्स क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल। आल्काइन्स तो कुछ नहीं, आल्काइन्स नॉर्मल, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म।
ओके चलो अभी थोड़ा ज्योमेट्रिकल तो कल डिस्कस किया था, सिस एंड ट्रांस, कंफर्मेशन डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अभी कंफर्मेशन थोड़ा बोल के उसके बाद आई विल स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। कंफर्मेशन स्पेलिंग देखो FOR, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये सिर्फ आल्केन्स में होगा, इन आल्केन्स, आल्केन्स में होगा। ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट पूछते हैं ऐसा भी क्वेश्चन, क्यों कैसे हो रहा है, व्हाट वाज द रीजन? ड्यू टू CC बॉन्ड रोटेशन, CC बॉन्ड फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, ओके जियो जैसा फ्री, ठीक है। देखो एक ईथेन है CH3 ईथेन, एक तो एक फ्रंट कार्बन है एक तो बैक कार्बन, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल है, देखो लिखने वाला ये तो फ्रंट है, चलो मैं ऐसा निकाल, ये मॉलिक्यूल को ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा लिखना थोड़ा मुश्किल है, दैट्स व्हाई एक रिप्रेजेंटेशन है ऐसा, एक रिंग एंड डॉट, द डॉट इज फ्रंट कार्बन, डॉट इज फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन में 3 hydrogens are writing like this, hydrogen, hydrogen and hydrogen, ओके। न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन। और बैक कार्बन, बैक कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन आई एम राइटिंग हियर, हाइड्रोजन, 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 ओके। दिस कार्बन इज बैक कार्बन, it is the front, this is the front carbon, this is the back carbon, बैक कार्बन, राइट, ठीक है। अभी ये दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, इधर बॉन्ड एंगल कितना होगा, इधर तो दिख रहा है 120 है ना, 120, चलो 120 120 120 तो 360 हो जाएगा। नाउ दिस फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन, दिस वन, सो आई विल मेंशन हियर, एक तो बैक कार्बन को डैश मेंशन करता हूं, फ्रंट कार्बन को नॉर्मल हाइड्रोजन। अभी ये H डैश एंड द सेंटर देन दिस H, बॉन्ड एंगल H डैश एंड कार्बन H, इसका बोलते हैं which angle is this? बॉन्ड एंगल तो ये होता है ना इसका, टॉर्जनल स्ट्रेन होता है इसका। सी हियर, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन थोड़ा स्ट्रेन तो होगा, उसका बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन। ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, just 1 minute। ये एंगल का बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल, डायहाइड्रल एंगल, इसे बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल,
डायहेड्रल एंगल. ओके, ये डायहेड्रल एंगल 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है बीच में. ओके, सो फॉर ईच एंड एवरी डायहेड्रल एंगल one conformational isomer. So how many conformational isomers are possible? Means here infinitive conformational isomers, conformational isomers, conformational isomers are possible. Possible कितना है? Infinity. Okay, out of this infinity only two are important. One is eclipsed. eclipsed वो कब बनेगा? When theta, इसका तो theta equal ये दोनों के बीच में, when theta equal, theta means here dihedral angle, dihedral angle, dihedral angle is 0 डिग्री. मतलब हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली ये फ्रंट हाइड्रोजन, दोनों के बीच में कुछ नहीं है. अभी देखो ऐसा, ये तो फ्रंट हाइड्रोजन, बैक हाइड्रोजन. अभी 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री like this. Okay, now next one is staggered. staggered staggered का थीटा इक्वल हो जाएगा 60 डिग्रीज. Okay, 60 degrees. This is the more unstable, more unstable. It is more stable, more stable, more unstable, and it is more stable. Okay, ये more unstable क्यों? देखो ये बाजू बाजू में है हाइड्रोजन, फ्रंट हाइड्रोजन, बैक हाइड्रोजन. So repulsions are there. Repulsions, bond strain भी बोलते हैं, torsional strain बोलते हैं. Here two types of repulsion. One is sigma sigma bond electron repulsion. Another one is this group hydrogen and hydrogen repulsions. Hydrogen and hydrogen repulsions as well. Sigma bond repulsions. Whenever these are going away, hydrogen hydrogen repulsion तो बिल्कुल नहीं है. और sigma bond also almost distance is there. Sir, why only 60 degrees? If I take 70 degrees, there is no stable again. क्यों? If I take 70, then ये हाइड्रोजन तो नीचे होगा, नियर होगा. Then again repulsion will start. सबसे stable मतलब कब होगा? Only 60 degrees. Okay, 60 मतलब 60 next 60 120 में भी वही होगा. वो 6 पता है ना अभी 6 240 में भी होगा ऐसा, राइट? ये तो टू इंपॉर्टेंट है, एक तो मोर स्टेबल, एक अनस्टेबल. और कभी क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं at 40 degrees, at 60, at 70 में which is a more stable, मतलब you can answer from this given information. Okay, अभी एक बार ऐसा पूछा था पीवाई क्विज में, एक H डैश दिया है, ठीक है, और एक H डैश से इधर H डबल डैश दिया है, H डबल डैश, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल पूछा था, लेकिन इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट डायहेड्रल एंगल इज गिवन 10 degrees. ओके, ये फिगर एज इट इज फिगर नहीं है, थोड़ा वेरिएशन है. डायहेड्रल एंगल इज गिवन 10. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन? डायहेड्रल एंगल मतलब क्या होता है? ये दोनों के बीच में होता है, ठीक है. अभी टोटल H डैश एंड H डबल डैश के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? मतलब क्या होगा? ये तो इट इज द इमेजिनरी लाइन, मतलब ये तो इतना पूछ रहे, राइट? सो डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल कितना दिया? थीटा इक्वल तो 10 दिया. ये तो कितना होता है? 120 तो फिक्स्ड था, 120 प्लस 10 तो टोटल 130. ओके, आंसर वाज 130. ओके, लाइक दैट क्वेश्चन केवाई क्विज में देख सकते हैं. ओके, स्टेबल एंड अनस्टेबल समझ गया? व्हाई इट इज स्टेबल, व्हाई इट इज अनस्टेबल? Eclipsed unstable है, staggered stable. Understood? What was the reason? Here, dihedral angle, one word is there, right? ये जो conformational isomers, ठीक है?
इसमें एक मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। सेकंड कार्बन में भी एक मिथाइल है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब ब्यूटेन इट इज एक्चुअली, ब्यूटेन। ब्यूटेन में CH3 CH2 CH2 CH3, I am taking this is the front carbon, I am taking this one is the back carbon, मिडिल। फ्रंट कार्बन में 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, फ्रंट कार्बन में 2 हाइड्रोजन्स 1 मिथाइल, बैक कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल is there. I am rotating 60 degrees, 60 degrees I am rotating, then क्या होगा, एक तो एक चीज ऐसे रखो, इधर फ्रंट वन और बैक वन कोई भी, ठीक है, मैं फ्रंट वन स्टेबल रखता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 60 डिग्रीज रोटेट किया, मतलब तो मिथाइल इधर आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट अगेन 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज रोटेट कर, फ्रंट तो स्टेबल रख दो, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब मिथाइल क्या हो गया, अभी मिथाइल इधर आ गया, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट अगेन 60, नेक्स्ट अगेन 60, 60 में क्या हो गया, फिर वापस फ्रंट तो सेम रख दो, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस मिथाइल अभी मिडिल आ गया, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट अगेन 60, 60, तब क्या होगा, ये मिथाइल इधर जाएगा, फ्रंट कार्बन तो ऐसे रख दिया, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बैक कार्बन तो रोटेट हो गया, CH3 इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट अगेन 60 डिग्रीज, नेक्स्ट क्या हो गया, फ्रंट तो एज इट इज, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो CH3 बीच में हो गया, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट अगेन 60 किया, तो फ्रंट स्टार्टिंग आ गई, ऐसा वो रोटेट होते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। नाउ आई विल गिव द नंबरिंग, हियर इट इज अ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्ट्रक्चर्स आ गए, राइट। अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है इसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये 6 स्ट्रक्चर्स में। चलो, सबसे अनस्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वन इज सबसे अनस्टेबल, क्योंकि मिथाइल मिथाइल बाजू में है, देखो इधर रिपल्शन इतना था, बाजू में से सबसे अनस्टेबल तो 1 है, 1 से बेटर वाला कौन है, सबसे स्टेबल कौन है, 4th, बहुत डिफरेंस है, मिथाइल ग्रुप्स भी ऑपोजिट है, सबसे स्टेबल तो 4th, बस तो 2 हो गया। अभी सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड में देखो which will be the more stable, थर्ड तो अगेन रिपल्शंस आर देयर, हियर रिपल्शंस है लेकिन दूर में है, सिग्मा बॉन्ड तो है नहीं इधर, ऑल 3 सिग्मा बॉन्ड्स का तो रिपल्शंस है, ठीक है, सो ये तो ज्यादा होगा अनस्टेबल, ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब ठीक है, 1 से बेटर 3, 3 से बेटर 2, 3 से बेटर 2, और 2 से बेटर 4, व्हाट अबाउट फिफ्थ वन, फिफ्थ वन एंड थर्ड वन दोनों का सेम है, फिफ्थ एंड थर्ड, थर्ड एंड फिफ्थ दोनों सेम है, देन सेकंड एंड सॉरी फोर्थ है ना ये, नहीं सिक्स्थ, सिक्स्थ एंड सेकंड, सिक्स्थ एंड सेवंथ सेकंड बोथ आर सेम, ओके राइट। नाउ इसका नाम, ये तो फुल्ली एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड मतलब तो 2-3 आ गए, इसलिए तो कुछ नेम डिफरेंट दे रहे हैं, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, इसलिए इधर लिखता मैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ओके। और इसका होता है क्वाइट ऑपोजिट है इसका, ये एंटी,
ओके, चलो इसका पहले लिख दिया तो स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में दूसरा और एक है गौशे लिखते, एक दूसरा वर्ड, ये तो स्टैगर्ड है, ठीक है। स्टैगर्ड में दूसरा नाम है GAUCHI, गौची। ये भी होता है, बाजू बाजू में है तो ऐसा नेम देते, GAUCHI, गौची। ये क्या है? ये भी तो एक्लिप्स्ड है, पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड। एंटे एंटे भी स्टैगर्ड होता है, लेकिन ये स्टैगर्ड दो है, इसलिए तो एक गौशे बोल दिया, इसका एंटे बोल दिया। एंटे में ऑपोजिट रहता है, क्वाइट ऑपोजिट। ये भी तो स्टैगर्ड के अंदर आता है, ठीक है। चलो पार्शियली एक्लिप्स्ड, तो ये भी पार्शियली एक्लिप्स्ड होगा, राइट। partially eclipsed, PE, partially eclipsed. Okay, this is the energy order, energy order. Note down fast or take screenshots. Is it clear? Next, stability of cycloalkanes. Bayes theory, BAEYERS, Bayes theory. What is this? Bayes theory is telling that based on bond angles, stability will tell. So here, according to this theory, stability is inversely proportional to bond angle difference, or deviation from 109.5 degrees, from 109.5 degrees. ज्यादा डेविएशन है तो, अच्छा डेविएशन बढ़े तो स्टेबिलिटी कम होगा, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। According to this theory, cyclopropane and cyclobutane में cyclobutane is more stable than cyclopentane has more stable than cyclopentane is more stable.
Okay, then cyclohexane should be less stable according to this. देखो इधर bond angle here 60 degrees strain, cyclic है ना, cyclic 60 degrees, not degrees Celsius, degrees. Here 90 degrees, here 105 approximate, here approximate 120. ओके, चलो हमको चाहिए 109.5 इज स्टेबल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 109.5 इज स्टेबल. अब मैं डिफरेंस लेता हूं, माइनस 109.5 माइनस 109.5 माइनस 109.5 माइनस 109.5. वैल्यू क्या होगा इधर, अप्रॉक्सीमेट 40 प्लस 10 अप्रॉक्सीमेट 50 है ना, 50 मींस 49.5. ओके, मॉड्यूलस वैल्यू कोई प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं, जस्ट प्लस हो. ओके, देन हियर 110 मान लो, 110 मतलब 20 अप्रॉक्सीमेट, 20 मींस 19.5. हियर जस्ट 4.5, हियर 10.5. देखो स्टेबिलिटी इससे इसका ज्यादा है, क्यों? क्योंकि 109 से डिविएशन बहुत कम है, इधर बहुत कम है, इसलिए इधर डिविएशन इससे थोड़ा ज्यादा है, इसलिए तो साइक्लोपेंटेन इज द मोस्ट स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन इज लीस्ट स्टेबल. कम ये दोनों में, इतना तक तो ठीक है, साइक्लोपेंटेन तक ठीक है, लेकिन बट नेक्स्ट बट आ गया, बट cyclohexane is more stable, cyclohexane is more stable than cyclopentane, experimentally proved, ये कैसे था, वो theoretically बोल दिया था, एक्सपेरिमेंटली तो cyclohexane is more stable. रीजन तो होगा कुछ, रीजन ये है, cyclohexane has chain structure. Cyclohexane has chain structure. It's not like this what we are writing. ये तो ऐसा chain structure होगा, chain structure. In that all carbons have tetrahedral geometry. All carbons have tetrahedral geometry, and all hydrogens are in staggered. में क्या होता है, हाइड्रोजन डिफरेंट होता है ना, कोई एक्लिप्शन नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रेन तो होगा ही नहीं, राइट? That was the reason, that's why therefore that is a more stable. Okay, then here again one note point. The cyclohexane exhibit chair form as well as boat form. Chair and boat as well as boat form. Chair form में ये ऐसा होता है, chair. ओके, नेक्स्ट बोट फॉर्म में बोट जैसा होता है, ये बोट फॉर्म, ठीक है. बोट फॉर्म इज अनस्टेबल, हियर इट इज स्टेबल. बोट फॉर्म इज अनस्टेबल, चेयर फॉर्म इज स्टेबल, ठीक है. मोर इंफॉर्मेशन के लिए एक बार गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, तो कंपलसरी है, आई विल कवर मैक्सिमम पॉइंट्स ओनली.
each and every line I cannot do now. ठीक है. So why, what was the reason? देखो ये दोनों तो सेम लाइन में है, मतलब एक्लिप्स में है. ठीक है, here हाइड्रोजन होगा, here हाइड्रोजन होगा, वो दोनों का रिपल्शन होता है. इधर तो फिगर में तो दूर में है, ऐसा नहीं कहते. सो उसका बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन. फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं उसका. फ्लैग है ना, फ्लैग बोर्ड में फ्लैग रहता है ना. फ्लैग पोल हाइड्रोजन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है. चलो, फाइनली दैट इज अनस्टेबल. सो दिस इज द वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर हियर. ये बेयर्स थ्योरी एक होता है, राइट. नेक्स्ट, preparations. Preparations of alkanes. Preparations of alkanes. alkane कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? alkene से प्रिपेयर कर सकते हैं, alkyne से प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, चलो फर्स्ट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में if you know all preparations, the properties will be easy. If you know all properties, preparations will be easy. मतलब 50% पढ़े तो 50% बोनस. That is it. ठीक है, अभी alkenes preparations, right? I can take from alkenes, and alkynes, and alkynes. ठीक है, इसमें कोई भी R ग्रुप ले सकते हैं. मैं R C डबल बॉन्ड CH2 CH3. ठीक है, ज्यादा हो गया. चलो, दूसरा R C ट्रिपल बॉन्ड, इधर देगा, इधर देना, राइट. ट्रिपल बॉन्ड CH3. मतलब आल्केन भी ले लो, आल्काइन भी ले लो, दोनों में कोई भी ले सकते हैं. Then here reagent H2 in the presence of nickel, palladium, platinum. Nickel, palladium, platinum, or nickel, platinum, palladium. So you will get it RCH2 CH2 CH3. Okay, right. अभी ये तीनों में पैलाडियम थोड़ा लेस प्रेफरेंस, पैलाडियम लेस रिएक्टिव, लेस इफेक्टिव. क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था निकल, प्लैटिनम, पैलाडियम में विच विल बी मोस्टली यूज्ड. मोस्टली तो निकल प्लैटिनम इज यूजिंग, पैलाडियम लेस इफेक्टिव. चलो, लेस यूज करते वैसे तो तीनों तो देते, राइट. ओके, दिस इज द फ्रॉम alkenes and alkynes. चलो, वन मोर रिएक्शन. नेक्स्ट, फ्रॉम haloalkanes, from haloalkanes, ठीक है. So I am taking here C2H5Cl. इधर मैं सेम नंबर ऑफ कार्बन भी दे सकते और इंक्रीज भी कर सकते. देखो कैसे है. एक तो C2H5Cl मैं सोडियम यूज करता हूं, तो ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम एंड ईथर, दैट इज ऊर्ज रिएक्शन. उसमें क्या बनेगा? C2H5 बॉन्ड C2H5. सर दूसरा C2H5 कहां से आया? तो कितना चाहिए तो उतना ले लो, कोई बात नहीं है. ठीक है, ले लो डबल. चलो, आई एम टेकिंग 2 moles इथेन, दैट इज ऊर्ज रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट दूसरा और एक रिएक्शन है, सेम कंपाउंड. आई एम टेकिंग HI in the presence of phosphorus. HI in the presence of phosphorus. See the, I will get same number of carbons. There is no increase in the chain. Only C2H6. ये इतना खतरनाक रिएजेंट है ये HI एंड फास्फोरस. ये सबको आल्केन बनाते हैं, सब फंक्शनल ग्रुप्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, सब का.
I will write it here again. R C double bond O OH, R C double bond OH, R C double bond O Cl. Okay, like this. R already हो गया. C double bond O CH2. ठीक है. R C double bond O ethyl. कुछ भी हो, ये सब HI फास्फोरस में आल्केन बनेगा. आल्केन बनेगा. सब फंक्शनल ग्रुप्स इनटू आल्केन्स. सब फंक्शनल ग्रुप इनटू आल्केन. इतना खतरनाक रेड्यूसिंग एजेंट है. राइट? हेलो alkenes. Hello alkenes. Right. Next. Third, from carboxylates. From carboxylates. Indirectly carboxylic acids है. ठीक है. कार्बोक्सिलेट मतलब सॉल्ट लेना है. R C double bond O minus Na plus. इसमें क्या लेते हैं? Decarboxylation. What is the reagent decarboxylation? सोडा लाइन. उसका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. ये रिएक्शन क्या बोल सकते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन. क्या बन रहा है हमको? ये तो डीकार्बोक्सिलेशन में वो CO पूरा निकल दे. कैल्शियम ऑक्साइड ना, राइट. RH. ओके, बस ये तो कार्बन, ये CO पूरा निकल गया था. एक कार्बन कम हो रहा है. नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें तो एक कार्बन तो कम हो रहा है. आई विल राइट वन मोर एग्जांपल फॉर दैट. I am taking here propanoate. I am using same reagent. Then what I will get it? Ethane I will get it. Okay, ये तो इतना तो निकल जाएगा, right? So ethane I will get it. Okay, ये तो from carboxylate एक हो गया. दूसरा कार्बोक्सिलेट मैं दूसरा तरीका से I am taking CH3 C double bond O minus Na plus. I will do the electrolysis. So CH3 C double bond O minus Na plus. So I am taking 2 moles. इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस में ये बॉन्ड ऐसा ब्रेकेज होगा, इधर भी रॉडिकल बनेगा, इधर बॉन्ड ब्रेकेज होगा, इधर एक रॉडिकल बनेगा. दिस रॉडिकल एंड रॉडिकल क्या बनेगा? इथेन बनेगा. So this one is giving CH3 bond CH3 ethane. CH3 bond CH3 ethane. इसका नेम है कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस. अभी जेई में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं वो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस तो ठीक है. दैट कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं और कहां बन रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब तो एनोड एंड कैथोड होता है. ठीक है, एनोड एंड कैथोड में कैसे? देन देखो कार्बोक्सिलेट का CH3COO माइनस, ये तो एनायन है. एनायन गोस टू एनोड. एट एनोड वो क्या होता है? एनायन गोस टू एनोड गेटिंग ऑक्सीडेशन. क्या होता है? पहले CH3 C डबल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं,
तो रेडिकल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो रेडिकल बन गया, देन हियर होमोलाइटिक क्लीवेज टेक्स प्लेस, क्योंकि ये कार्बन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का, ठीक है। सो होमोलाइटिक क्लीवेज, देन इन फॉर्मिंग CH3 रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़। सो एक रेडिकल बन गया, दूसरा ऐसा भी और एक मिथाइल रेडिकल बन गया, देन फाइनली मिथाइल रेडिकल प्लस मिथाइल रेडिकल इज फॉर्मिंग इथेन। इथेन तो कहां बन रहे हो, एनोड के पास। इथेन इज फॉर्मिंग एट एनोड एज वेल, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो फॉर्मिंग एट एनोड, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो फॉर्मिंग एट एनोड। नाउ एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, एट कैथोड तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन कौन है इधर, Na प्लस है कैटायन, that Na plus will take this electron forming sodium, सोडियम, ठीक है। अभी कैथोड के पास सोडियम बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन में एक्वस मीडियम है तो, एक्वस मीडियम है तो ऑब्वियसली सोडियम विल रिएक्ट विद वाटर, देन क्या होगा, सोडियम रिएक्शन विद वाटर, इट इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, okay। So finally hydrogen is liberating, finally hydrogen is liberating, okay। सब वाटर नहीं है मतलब सोडियम बनेगा, नहीं तो हाइड्रोजन इज लिबरेटिंग। सो कैथोड एंड एनोड वो भी पूछते। हेलो एवरीवन, यू फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग, फास्ट चल रहे क्या, इतना तो चलना पड़ेगा, रिवीजन है। रिवीजन क्या है सर, हमको अभी पता है सब कुछ क्या, इज इट ओके, फाइन, यस, राइट। से कल संडे है, डू रिवीजन, ओके। मिनिमम एनसीईआरटी बुक तो पढ़ो 2 बार एटलीस्ट, ठीक है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया देन यू कैन आस्क, बिकॉज क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स ये तो है, इसलिए मैं चालू किया, ओके। फिर भी आज ओनली 21 प्लस 2 24 स्टूडेंट्स ओनली, हार्डली, रिमेनिंग 6 7 8 स्टूडेंट्स देयर, चल रहा है, ठीक है। ओके, अल्केन प्रिपरेशन कब तक है पीरियड, 12:20, जस्ट 3 मिनट्स ओवर एक्स्ट्रा। सी कल अभी एग्जाम है ना, सी आई विल टेक 3 more minutes, कुछ इंपॉर्टेंट 2 3 रिएक्शंस आई विल टेल यू बस। ओके, अल्केन्स का मैक्सिमम तो हो गया। अल्केन्स केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन्स कोई रिएक्शन होते नहीं, ओनली अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस। You know that CH4 is there, suppose in the presence of light, reaction with chlorine, it is giving chloromethane, then dichloromethane, then trichloromethane, then tetrachloromethane. Okay, number of compounds, mixture of compounds are forming. Suppose if you want more methyl chloride, you have to take chlorine is less amount. If you want carbon tetrachloride, you take excess chlorine. ज्यादा क्लोरीन लेते तो ज्यादा बनेगा, कम लेते तो कम वाला बनेगा, ठीक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन 1। द सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। सपोज इफ यू आर टेकिंग 6 membered या 7 membered ring, 7 membered chain, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 carbon chain I am taking. By the oxidation कुछ reagents है, ऑक्सीडेशन, सो ये सेकंड एंड थर्ड के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक इंटरमीडिएट बनता है, पहले इंटरमीडिएट बनता है, इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होके टोलिन, बेंजीन स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज द टोलिन, ओके, दिस इज द टोलिन, ठीक है। अभी अल्कीन एंड अल्काइन थोड़ा बाकी है, देखता हूँ कल मंडे
कुछ कवर करके हेलो ऑल्केन्स भी शुरू करता हूँ. ओके, मैक्सिमम कवर किया मैं. ऑल्कीन्स एंड ऑल्काइन्स थोड़ा बाकी है. ओके, if you have doubt, you ask, you write the topic. I will focus on the topic. Otherwise, some important concepts I will teach you. Then I will start halo alkanes next week. Do the revision compulsory. Revision करना है as well. Do the PYQ questions. Next week I will give the syllabus. Some basic concepts of chemistry and hydrocarbons combinedly I will give. 2 chapter, but of course you have to do revision है इसलिए. So these 2 chapters होगा next week syllabus में. Weekend syllabus Saturday का. Monday तो full 5 chapters है ना. Next week Monday है. 5th को ग्रांड टेस्ट, मतलब तो Monday होगा ना. नेक्स्ट मंडे होगा. तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को ये टेस्ट होगा. सर नेक्स्ट टेस्ट इज ग्रैंड टेस्ट. या ग्रैंड टेस्ट कब होगा बेटा? मंडे होगा. सैटरडे तो नहीं है ना. सैटरडे तो वीक टेस्ट होगा. वो भी कैंसिल किया. अच्छा ठीक है. आफ्टर 5th तो एक बार ये तो रिवीजन करना ही पड़ेगा. आफ्टर 5th में नहीं है, 5th के बाद. ओके, क्योंकि अभी तो रिवीजन एक बार चालू करे तो ऑर्गेनिक एक सेट पूरा खत्म हो जाता है. ऑर्गेनिक हो गए तो 33% सिलेबस साइड में रख सकते. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.